हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया था और इसमें इसका फोर्थ पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स. इट इज नॉट it was not recorded properly. So the first two part is very much clear, and the fourth triangle inequality. In this case, if x and y are and y and z are equal, then definitely metric will be जब इक्वल होते तो मेट्रिक जीरो होता है. ठीक, ये हमने कर लिया था. सो इन द केस इन equality will happen, that is dx y equal to 0, and we can write 0 plus 0. So d और x और y एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस जीरो होगा, इसके बीच में भी जीरो होगा, तो इक्वलिटी होल्ड करेंगे. इफ x and y not equal to x and y not they are not equal, so the distance between the element x and y will be 1, and x and z भी इक्वल नहीं होगा, सो 1 आएगा, एंड y और z इक्वल टू है तो 0 आएगा. सो 1 को हम 1 प्लस 0 लिख सकते हैं. या तो हमने ये किया था. सो सेम वन पॉसिबिलिटी इज दैट कि x और y इक्वल हो जाए, and y is not equal to z. So in that case x y का जो डिस्टेंस होगा 0 आएगा, और dx y x z 1 आएगा, because they are different, and x y z भी 1 आएगा. So in that case dx 0 है, dx y 0 है, 0 को हम लिख सकते हैं 0 less than 1 plus 1. So in that case we get inequality. So one more possibility is that कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हो. सो इसमें आपके पास dx y का और dx और z का और dz और कॉमा y का डिस्टेंस, y और z का डिस्टेंस 1 आएगा. सो इन दैट केस वी कैन राइट, so dxy is equal to 1, and 1 is less than 1 plus 1, so that equal to dx z plus dz y. So you see, in the all possible cases, when they are equal, when x y not they are not equal, and when x और y equal है और y और z equal नहीं है, ये तीनों equal नहीं है आपस में, तो in all cases what we have dx dy या तो इक्वल है या लेस देन इक्वल टू for all x y z belongs to x. So that's why these four inequalities are four conditions of metric space satisfied. So we can say this is metric space, और इस metric space को हम discrete metric space भी बोलते हैं. Okay, so before we starting, we have to discuss one more example that is very known to us. So in that case, अगर हम यहाँ पे जो x है, जो मेट्रिक स्पेस है, उसको हम मान लेते हैं x is equal to real numbers. Okay, and जो मेट्रिक है x comma y, that is nothing but it is x minus y
mod this. So this is non-empty, and this is the metric, and all of we know what this mean by mod. Mod is modulus of a number, of a real number. So mod की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो वन इज कि एक तो मॉड आपका पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर ये जीरो आएगा तो इम्प्लाइड बाई ये एक्स जीरो होना चाहिए, और -x का मॉड और x का मॉड सेम होता है. सो एंड अगर हम दो नंबर्स का एडिशन का मॉड करें, सो इट इज लेस देन x mod plus y mod. So because of these properties of the modulus of a real number, we can easily we can show that कि x comma d is a metric space, is a metric space. So कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी कि dx comma y is equal to mod ये आएगा, and this is positive for all x comma y. So first property hold करेगी. And second is अगर हम dx को जीरो पुट करते हैं, so definitely it means that x minus y mod equal to 0. and अगर ये जीरो आता है so mod तभी जीरो होगा जब आपका ये नंबर जीरो आएगा. So what we get, x is equal to y. So this property can be reverse is also clear कि ये होगा तो ये होगा. So it is both way true. Okay, if dxy equal to 0 आएगा तो xy equal to x y की इक्वल होना चाहिए. If we talking about third property, हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, so third property is dx dy. So by defining this, so we can write like minus common ले लेंगे, y minus x, we can write like this. So because of this mod of minus x is the same, so y minus this will be equal to this, and this is nothing but it is dy dx for all x y belongs to capital X. So this is the third property, and the fourth one is very easy one, that is dx dy. So this is x minus y, so we simply हम यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देंगे, वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और we clubbing these two, so we can write less than equal to x minus z plus z minus y mod, and this is nothing but it is this is equal to xz, and this is equal to dzy. So what we get dxy less than equal to dxz plus dzy for all x y z belongs to capital X. So by these proper properties we can say R with D is a metric space, and also this metric is known as usual metric. This metric is called usual metric. तो मॉड वाली मेट्रिक को हम यूजुअल मेट्रिक भी बोलते हैं. ठीक. सो सेम इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ले लें, जहाँ पे हमने x एक रियल नंबर लिया. सो इस एग्जांपल में अगर हम आगे कंटिन्यू करें, सो if x is complex numbers और d हम डिफाइन कर दें,
z1 comma z2 is nothing but it is z1 minus z2. So all of we know all the properties of modulus of z what we have. So जब हम z की बात करते हैं तो z belongs to complex number c. So definitely mod of z जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव रहता है, बिकॉज मॉडल ऑफ z इज नथिंग बट इट इज ए स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर रूट होता है. सो ये पॉजिटिव होगा. और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें कि अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर जीरो आया है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो ही होगा. सो एंड माइनस ऑफ जेड इज जेड ही होता है. ठीक. एंड वन मोर, दो हम अगर नेचुरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z1 z2, सो mod of z1 less than mod of z1 plus mod of z2. So why the these properties of modulus of a complex number? We can simply prove this is x comma d is metric space. So I think no need to repeat the above example. Simply जैसे हमने रियल के लिए करा वैसे हम इसको कॉम्प्लेक्स के लिए इजीली चेक कर सकते हैं. सो one more very important thing is norm. So some metric we have to study in the coming lectures. So we should know what is the norm. स्टूडेंट्स अगर हम नॉर्म की बात करें, नॉर्म ऑफ एलिमेंट, norm of a element is nothing but it is size of an element x. ठीक है, size of an element x is called norm, and you can write a norm is the size of an element x is a real and the real number होता है size of it, and is denoted by x का नॉर्म फाइंड लिखना है तो हम टू वर्टिकल्स लाइन लगाएंगे दोनों साइड्स ऐसे. तो दिस इज नॉर्म ऑफ x. तो सिंपली इसको हम नॉर्म बोलते हैं. सो नॉर्म की प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो नॉर्म की भी ये प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ठीक. दूसरी प्रॉपर्टी उसकी सेम, द नॉर्म ऑफ किसी रियल नंबर का अगर नॉर्म जीरो आ रहा है तो बोथ वे ट्रू है कि वो x जो होगा वो जीरो होगा, और x जीरो है तो नॉर्म जीरो होगा. एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो नॉर्म्स के ऊपर है, दैट इज नॉर्म ऑफ माइनस एक्स और नॉर्म ऑफ एक्स सेम रहता है. एंड द फोर्थ वन इज द नॉर्म ऑफ x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y. ठीक. So with the help of these four properties you simply can see कि we can
induced a metric by the help of this norm. So if we define a metric dx comma y is equal to nor x minus y, तो इस मेट्रिक को भी हम इजिली इस विद द हेल्प ऑफ दिस मेट्रिक हम इसको मेट्रिक स्पेस प्रूव कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी जो मेट्रिक होगा उसको हम बोलेंगे मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। दिस metric is called the metric induced by the norm, induced by the norm. So नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत डिटेल से ही हम इस नॉर्म को यूज करते हैं, ठीक। सो ओके, वन मोर एग्जांपल, और इसमें भी देखो हम इस नॉर्म का यूज करेंगे आगे। सो एग्जांपल इज कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल 4 को कोट करते हैं कि वी हैव a set of a real functions defined on closed unit interval 0, 1, and this function is also bounded in closed interval 0, 1, closed interval 0, 1। तो यहाँ पे भी हम एक नॉर्म डिफाइंड कर सकते हैं ऑन दिस फंक्शन। तो सपोज सबसे पहले हम एक डिफाइन कर लेते हैं कि लेट f बी अ रियल valued function defined on closed interval 0, 1, and f is bounded function, and bounded function का मतलब ये है कि that is there exists a real number k such that f of x mod जो है वो less than equal to capital K आएगा for all x belongs to close interval 0, 1। तो वेरी सिंपल डेफिनेशंस है कि हमने बेसिक लेवल पे हमने पढ़ा होता है व्हाट दिस माय क्लोज्ड लाइक दिस। और फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हमें पता होता है कि जैसे दो फंक्शंस हैं f और g है, अगर इनका एडिशन करना है हमें, सो वी कैन राइट लाइक दिस। और उसी तरह से माइनस के लिए भी होल्ड करेगा ये रिजल्ट, ठीक। और माइनस ऑफ ये जो आएगा वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक। एंड जीरो फंक्शन को भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं टू जीरो। तो यहाँ पे ये सारा जो x है तो दैट x is belongs to closed interval 0। तो by the with the help of these properties of the function on
f and g. So we can define a norm. We define a norm of a function f y like this SA, and this is equal to nothing but it is the integral 0 to 1 mod of f of x dx. ठीक, ये हमारा नॉर्म हो गया और इस नॉर्म की हेल्प से हम एक अब मीट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं, एंड द induced metric y df comma g is equal to norm of f minus g, and that will be nothing but is, यहाँ पे हम यूज करें कि f तो यहाँ पे ये चीज आएगी तो हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 mod of f of x minus g of x dx. ठीक, so clearly we can simply prove this set of real valued functions defined on closed interval 0 1 with this norm and with this metric, we can prove this set is metric space. तो इसमें अगर प्रॉपर्टीज प्रूव करनी हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो डी एफ कॉमा जी, तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्म ऑफ एफ जी है, और हमने ये नॉर्म हम ये डिफाइन कर रखा है हमने. सो 0 to 1 f of x minus g of x. तो डेफिनेटली जब ये मॉड पॉजिटिव है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो डेफिनेटली ये जो क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव आएगी. ठीक, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी. और अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, एफ मेट्रिक ऑफ एफ कॉमा जी अगर इक्वल टू 0 पुट करें, तो व्हाट वी गेट ये इंटीग्रल 0 है, 0 to 1 f of x minus g of x mod dx इक्वल टू 0. और अगर ये 0 आएगा तो हम यहाँ पे इसको mod ऑफ f माइनस जी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू 0. अब पॉजिटिव चीज का अगर ये सभी के लिए 0 आ रहा है, इट मींस दैट इट इज ओनली वैल्यू, इस इंटीग्रल का पॉजिटिव आने का पॉसिबिलिटी एक ही है कि जब मॉड ऑफ f माइनस जी ऑफ x जो हो ये 0 आए फॉर ऑल x. दिस वन, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी वैल्यू पे ये 0 आए. इट मीन दैट जो फंक्शन है f माइनस जी ये 0 होना चाहिए. सो दैट इम्प्लाइज f इक्वल टू g. सो बोथ भी ट्रू होगा, ये इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा. इट मीन दैट कन्वर्स ऑफ दिस इज आल्सो ट्रू. तो f कॉमा जी डी ऑफ f कॉमा जी अगर 0 होगा तो f और g बराबर होनी चाहिए. उसी तरह से अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड इज डी एफ कॉमा जी, तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ दिस. सो हम यहाँ भी नॉर्म में डायरेक्टली इंटीग्रल में ना भी जाना तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, जी माइनस एफ, और नॉर्म की डेफिनेशन है दिस इज इक्वल टू जी माइनस एफ नॉर्म. इट इज नथिंग बट इट इज
डी ऑफ जी कॉमा एफ। ठीक, उसी तरह से अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो डी एफ कॉमा जी, और इसको हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल से भी कर सकते हैं, इसको भी हम इंटीग्रल से करें तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स है। और फिर हम इसको यहाँ पे एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये dx। फिर हम इसको कंबाइन कर लें, so what we write, we can write integral this is less than 0 to 1 f of x minus h of x, this अलग अलग कर दिया इंटीग्रल, प्लस इंटीग्रल 0 to 1 h of x minus g of x dx. Definitely this will be metric of f comma h, and yes, simply you can say norm of this. Yeah, you can say this is norm of f minus h, and this is norm of h minus g, and this is metric of f comma h, and this is metric of h comma g. So why, and this what we get d f comma g is less than equal to d f comma h plus d h comma g. तो इस तरह से चारों प्रॉपर्टीज प्रूव होगी तो वी कैन से कि इट इज metric space. Now adding to this, अगर इसमें इस एग्जांपल में हम एक चीज और ऐड कर दें, so that is continuity. So और इस सेट को हम एक नोटेशन भी यूज कर सकते हैं जो इस बुक में यूज करी है वही मैं यूज करता हूं। तो एग्जांपल 5 में दिस नोटेशन इज this one 0 comma 1 like this. So it is nothing but it is a set of all bounded continuous, bounded भी हो गया, continuous real functions defined on close interval 0, this one। ठीक, और इसमें जो मेट्रिक है आपका, इसमें नई चीज आ गई कंटिन्यूटी, कि कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए फंक्शन। एग्जाम्पल 4 में कंटिन्यूस नहीं था, वहां पे ओनली रियल फंक्शन था और साथ में बाउंडेड था। क्लियर, बाउंडेडनेस। सो नाउ इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी है, तो इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं कि इसका मतलब इसमें जो फंक्शंस होंगे वो कभी कभी इस इंटरवल के अंदर ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, जबकि एग्जाम्पल 4 में कंटिन्यूटी का होना जरूरी नहीं है। सो इसमें जो हम नॉर्म डिफाइन करेंगे, सो f norm is defined as supremum of mod of f of x belongs to close interval, this one। ठीक, या सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ mod of f of x।
दिस वन, और ये नॉर्म हो गया, और जो मीट्रिक है उसको f कॉमा जी, f माइनस जी is equal to a supremum of mod of f of x minus g of x. सो यू कैन सी कि इसमें हम क्या करेंगे, सुप्रीमम, आई होप आपको पता हो सुप्रीमम क्या होगा। स्टूडेंट, जब ये हम फंक्शन लेंगे तो फंक्शन की हम मॉड लेंगे, जो फंक्शन के ऊपर हम सारी वैल्यूज कोशिश करेंगे 0 से 1 के बीच में सारे रियल नंबर ट्राई करके, और जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी आएगा वैल्यूज, उस पर मॉड लगा के, तो वी गेट ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। उस सेट रियल नंबर्स का हमने सुप्रीमम लेना। सुप्रीमम मतलब हो गया जो अपर बाउंड होगा उसका, उन अपर बाउंड में से हमने सबसे छोटा अपर बाउंड लेना है, ठीक है। इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो लेना है हमने, दैट विल बी सुप्रीमम। और इस केस में जब हम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली उसी को हम क्या बोलेंगे, एफ नॉर्म। सो इसमें मीट्रिक इस तरह से डिफाइन करी है कि एफ और जी के बीच में मीट्रिक है, तो उस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस आएगा, इसमें भी वही पूरी वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज हम यूज करेंगे, तो अलग अलग वैल्यूज के लिए हमारे पास एक सेट बन जाएगा रियल नंबर्स का। तो उन सेट्स का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा दैट विल बी द metric of f comma g। तो ये यूजुअल हम यहाँ पे चारों की चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। सो दिस सेट of bounded continuous real functions defined on closed interval 0, 1 with this metric is called a metric space। तो स्टूडेंट, ये 5 एग्जांपल्स थे जो मेट्रिक स्पेस में हमने मेट्रिक डिफाइन करा, मेट्रिक स्पेस की बात करी इसमें। तो अब स्टूडेंट्स, इसमें एक और डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डिस्टेंस की बात करें, हम डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सेट, एक सेट और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो मान लो कि लेट एक्स जो है वो हमारा एक मेट्रिक स्पेस है, ठीक। और इसके पास मेट्रिक है डी, किसी भी तरह की हो सकती है, एंड कैपिटल ए वी ए सबसेट ऑफ एक्स, ओके। इफ ए पॉइंट हम कैपिटल एक्स से लेते हैं, ठीक, देन डिस्टेंस 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 फ्रॉम एक्स टू ए इज नथिंग बट इट। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ए कॉमा एक्स, ये सेट, इसके बीच में डिस्टेंस,
तो डेफिनेटली जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, सो इट विल बी देखो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक सबसेट है। तो क्योंकि सबसेट के पास डेफिनेटली वन से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो इस एक्स का डिस्टेंस हमें या मैं एक्स को मैं सेकंड प्लेस पे रखता हूँ, जैसे यहाँ पे सेकंड प्लेस पे रखा तो यहाँ पे सेकंड प्लेस में रखते हैं। फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि मेट्रिक में सिमेट्री होती है। पर एनी हाउ, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए, तो यू कैन सी कि जितने भी ए के अंदर पॉइंट्स हैं उनके बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे एक्स का। ठीक, तो अगर इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो अगर हम ये मान लेते हैं ये आपका मेट्रिक स्पेस एक्स है, और ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है। ठीक, तो डेफिनेटली अब ये जो पॉइंट एक्स है वो तो एक्स का है, तो डेफिनेटली ए के अंदर तो नहीं होगा। अगर ए के अंदर होगा तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। ये मान लेते हैं एक्स है। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे, इट माइट बी इनफिनिट मेनी पॉइंट्स, तो उन सभी पॉइंट का जो हम जब डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, इन पॉइंट के साथ, जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, तो इट मीन दैट देयर विल बी इनफिनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, कि जो भी ए के पॉइंट्स होंगे उनके बीच में डिस्टेंस निकालें। और एक पॉइंट यहाँ पे होगा जो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा ए का और एक्स के बीच में, सो वो डिस्टेंस माना जाएगा। तो डेफिनेटली इस सेट के ऊपर ये जो डिस्टेंसेस आएंगे, इट विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इन सेट ऑफ रियल नंबर का जो सबसे छोटा होगा, सो वी हैव टू टेक इनफीमम। तो जो डिस्टेंसेस आएंगे उनका सबसे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो हम लेंगे, and that will be a distance between a point and x. One more thing, what is the diameter? Diameter of a set. Diameter of a set. हमने always क्या पढ़ा था? diameter of a circle. तो हम यहाँ पे diameter of a set की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अब डेफिनेटली जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं सर्कल ही होगा वो ऑलवेज। ये एक्स हो गया, हो सकता है ये आपका टेढ़ा मेढ़ा हो कुछ। ठीक, ये सेट, सेट के अंदर पॉइंट्स है। अब इसका डायमीटर क्या होगा? तो डायमीटर स्टूडेंट्स क्या होगा? जो ए के पॉइंटों के बीच में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, दैट विल बी डायमीटर। तो अब ये यहां से यहां तक जितने भी डिस्टेंस पॉसिबल है आपस में, वो डिस्टेंसेस लेंगे। तो इट मीन दैट डायमीटर को हम डी ए से डिनोट करेंगे। डायमीटर ऑफ सेट ए इज नथिंग बट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ए। तो एक्स भी ए से आएगा और वाई भी ए से आएगा, लेकिन इन डिस्टेंसों में सबसे जो बड़ा होगा, तो वी हैव टू टेक सुप्रीमम, क्योंकि ये डिस्टेंसेस जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। ठीक, तो रियल नंबर के सेट का जो सबसे बड़ा होगा, दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सेट। ठीक, और सेट का अगर इस सेट के पास फाइनाइट डायमीटर होगा या इनफाइनाइट डायमीटर होगा, तो ये पॉसिबल है कि इनफाइनाइट भी हो, इनफाइनाइट भी हो। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास
डी ए की वैल्यू की आती है। अगर डी ए की वैल्यू कोई रियल नंबर आती है तो फाइनाइट डायमीटर होगा, और डी डी ए की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो डायमीटर हमारा इनफाइनाइट डायमीटर होगा। ठीक। अच्छा, वन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एम्प्टी सेट होता है उसका हम इनफाइनाइट डायमीटर मानते हैं। तो कीप इन माइंड, डायमीटर ऑफ एम्प्टी सेट, diameter of empty set is always minus infinity, minus infinity. So it means that in empty set का जो diameter होता है वो infinite diameter होता है। ठीक है, infinite diameter। और ए बॉन्डेड सेट वन whose diameter is finite, ये भी एक डेफिनेशन हो गई एक तरह से डायमीटर कंटेक्स्ट में। ए bonded set is one whose diameter is finite। ठीक। और एक वन मोर थिंग कि बाउंडेड मैपिंग क्या होगी, डेफिनेशन और आती है कई बार। व्हाट इज बाउंडेड मैपिंग? तो बाउंडेड मैपिंग इज नथिंग बट इट इज ए मैपिंग ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, फाई इज मैप फ्रॉम, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए कोई। ठीक। और मान लो एक्स है, इट शुड बी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एंड इट इज मैप टू इनटू ए मेट्रिक स्पेस। तो ये मैप जो करेगा वो मेट्रिक स्पेस को करेगा। ठीक। तो मेट्रिक स्पेस हम एक्स यूज ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ए यूज कर लेते हैं। सपोज करो ये बॉन्डेड सेट हमारे पास ए है और ये मेट्रिक स्पेस एक्स। साथ में इसको बॉन्डेड तभी बोलेंगे इफ रेंज ऑफ फाई इज बाउंडेड सेट। ठीक। so these are the very simple definitions। अच्छा, एक और जो मेन हमने आई थिंक सूडोमेट्री का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। यस, सूडो हमने डिस्कस कर लिया था, इस एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया था। नाउ so we close now this topic now। In the next lecture we will start open sets, closed sets, neighborhood क्या होते हैं, open space क्या होते हैं। ठीक है, so that's all for today's lecture। Thank you।